صورت جن کے واقعے پہ ریئیکشن ہوگا. ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اینڈ تک لازمی دیکھنا. ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور پھر وہ یہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے. ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا. اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو آگے منظر بالکل مختلف تھا. جو ہی وہ آسمان کی حدود کے قریب پہنچے، اچانک آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے. ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا. واپس لوٹو، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے. وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف پلٹ گئے. جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا. سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا: کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہماری اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیں. اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں. قوم میں سناٹا چھا گیا. پھر ایک بزرگ جن بولا: یہ معمولی بات نہیں، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. جنات کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا: مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے. یہ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے. انہی جنات کا ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف بھی جا نکلا. وہ رات کے آخری پہر مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلہ سے گزر رہا تھا. اس ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی: الحمدللہ رب العالمین. انتہائی خوبصورت اور دلنشین آواز. سب جن اپنی جگہ رک گئے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو چلو جلدی چلو. انہوں نے جب آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں، اور ان سب سے آگے موجود ایک شخص وہ کلام پڑھ رہا تھا: ایاک نعبد و ایاک نستعین. جنات حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے. وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے. اصل میں وادی نخلہ سے تھوڑا آگے اکاس کے نام سے عرب کا ایک مشہور بازار ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسی اکاس کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ نے وادی نخلہ میں قیام کر لیا، اور اب آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی جماعت ادا کر رہے تھے. جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر آیت کے ساتھ ان کے دل بدلتے جا رہے تھے. وہ کلام روح کے اندر تک اتر رہا تھا: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے. انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ
यही कलाम था। कुरान सुनने के फौरन बाद वो जिन अपनी कौम की तरफ वापस लौट गए। बताओ, क्या पता चला? हमने वो चीज पा ली है जिसकी वजह से आसमान बंद हुआ। हमने एक अजीब कलाम सुना है जो सीधा रास्ता बताता है। हम इस पर ईमान लाते हैं और अब हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और यूं वो सब के सब जिन मुसलमान हो गए। दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हैरत अंगेज वाक़े का अभी तक नहीं पता था, मगर फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी पर सूरह जिन की ये आयत नाजिल फरमाई। कुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। ए पैगंबर कह दीजिए, मेरे पास वही आई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान गौर से सुना है और अपनी कौम से जाकर कहा है कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में हरगिज़ शरीक नहीं मानेंगे। एक जमाना था जब अरब के लोग रेगिस्तानों के लंबे और खतरनाक सफर किया करते थे। जब सूरज गुरूब हो जाता और काफिले को किसी सुनसान वादी या वीरान सहरा में रात गुजारनी पड़ती, तो काफिले का सरदार ऊंची आवाज में कहता, है इस वादी के सरदार जिन, हम तुम्हारी पनाह मांगते हैं। अपने शर से और अपने साथियों के शर से हमें बचाओ। जिन्नात जब ये देखते कि इंसान उनसे खौफज़दा हैं और उनकी पनाह मांग रहे हैं, तो उनके दिल में और गुरूर पैदा हो जाता। वो मजीद सरकश हो जाते। देखो, इंसान हमसे डरते हैं, वो हमारी पनाह के मोहताज हैं, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने सूरतुल जिन में बयान फरमाया कि इंसानों का ये अमल जिन्नात को और ज्यादा सरकश बना रहा था, मगर अब हालात बदल चुके थे। कुरान सुनने के बाद जिन्नात को अंदाजा हो चुका था कि इंसान का मकाम जिन्नात से बहुत बुलंद है, क्योंकि इंसानों में अल्लाह के आखिरी नबी मौजूद हैं और उन्हीं पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है। अब जिन्नात के दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हुई, उस हस्ती से मुलाकात की ख्वाहिश जिस पर यह कलाम नाजिल हुआ था। ये एक ऐसी रात थी जिसमें छुपी हुई दुनिया का पर्दा उठने वाला था। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद आपने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं जिन्नात को कुरान सुनाऊं। तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। आपने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार, मगर कोई जवाब ना आया। फिर आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें साथ लेकर मक्का की पथरीली जमीन की तरफ चल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ फासले पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अब आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को एक जगह बिठाया और मिट्टी में उनके चारों तरफ लकीरें खींच दी। फिर निहायत संजीदगी से फरमाया, इन लकीरों से हरगिज बाहर न निकलना। तुम्हारे करीब बहुत से लोग आएंगे
लेकिन न तुम उनसे बात करना और न वो तुमसे बात करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से दायरे में बैठ गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। रात मजीद गहरी होती चली गई। अचानक अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि कोई अजीब व गरीब मखलूक उनके करीब आ रही है। वो बहुत ऊंचे लंबे थे, मगर न उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे और न ही उनके लिबास। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के करीब आकर लकीरों के पास रुक जाते और फिर कुछ कहे बगैर खामोशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ जाते। अब्दुल्ला बिन मसूद का दिल खौफ से कांप रहा था। रात भर जिन्नात आते रहे और हुजूर के पास हाजिर होते रहे। जब रात खत्म होने के करीब हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अभी तक दायरे के अंदर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सारी रात जागता ही रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायरे के अंदर दाखिल हुए और अब्दुल्ला बिन मसूद के पास लेटकर सो गए। जो ही हुजूर की नींद गहरी हुई, एक और अजीब व गरीब मखलूक हाजिर हो गई। मगर ये मखलूक पहले की तरह खौफनाक नहीं थी, बल्कि ये बहुत नूरानी हस्तियां थीं। उनके कपड़े बिल्कुल सफेद थे और वो लोग इंतहाई खूबसूरत थे। उनमें से कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने बैठ गए और कुछ आपके पांव की जानिब। फिर वो आपस में बातें करने लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद खामोशी से सुनने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमने किसी बंदे को ऐसा नहीं देखा जिसे इतना मुकाम दिया गया हो जितना इस नबी को दिया गया है। दूसरा बोला, इनकी आंखें सोती हैं लेकिन इनका दिल बेदार रहता है। फिर उन्होंने कहा, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सरदार ने एक महल बनाया, फिर उसमें एक दस्तरखान बिछाया और लोगों को अपनी दावत पर बुलाया। जिसने दावत कबूल की उसका फायदा हो गया और जिसने दावत कबूल ना की वो सरदार उसे सजा देगा। ये बात कहकर वो सब उठे और चले गए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सुना उन्होंने क्या कहा और क्या तुम जानते हो ये कौन लोग थे? अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो फरिश्ते थे और उन्होंने जो मिसाल बयान की वो खुदाए रहमान की थी। अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और अपने बंदों को जन्नत की दावत दी। जिसने दावत कबूल की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने दावत कबूल न की उसे अजाब में डाल दिया जाएगा। ऐसी ही एक और रात थी जिसके बारे में सहाबाई कराम फरमाते हैं कि ये उनकी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक हमें एहसास हुआ हुजूर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हम घबरा गए और फौरन आपकी तलाश शुरू कर दी। वादियों में ढूंढा, घाटियों और दरों में देखा, लेकिन हुजूर कहीं नजर न आए। हमारे दिलों में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं हजूर को उठा तो नहीं लिया गया, कहीं किसी दुश्मन ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हमने वो रात शदीद बेचैनी में गुजारी। ऐसी रात जो शायद ही किसी कौम ने कभी गुजारी हो। जब सुबह हुई तो अचानक हमने देखा
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। हम दौड़कर करीब गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी रात तलाश किया और बहुत खौफ के आलम में रात गुजारी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नात की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था और मैं उसके साथ गया था। मैंने जिन्नात के सामने कुरान की तिलावत की। फिर हुजूर हमें अपने साथ लेकर गए और फरमाया, ये देखो, ये उनके कदमों के निशान हैं और ये उनके आग के निशानात हैं। सहाबा ने जमीन पर वो निशान अपनी आंखों से देखे। रिवायात में आता है कि जिन्नात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मुलाकातें की और आपसे दीन सीखा, जिससे पता चलता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी हिदायत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात के भी रसूल हैं। अगर आपके साथ भी जिन्नात का कोई वाक़या पेश आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।